Hello, students. Good morning. Today we will talk on phrases. Right from childhood, we discuss phrases, and sometime we get confused between phrase and clause, or sometime between clause and sentences. Why? Because phrase, clause, and sentence all are the group of words. So, what is the major difference? The major difference is that phrase is a group of words which does not have the combination of subject and verb. फ्रेज में सब्जेक्ट और वर्ब का कॉम्बिनेशन नहीं होता. वेयर एज क्लॉज, the group of words which must have subject verb combination. क्लॉज में सब्जेक्ट और वर्ब होगा ही होगा, नहीं तो वो क्लॉज नहीं हो सकता. एंड इन अ सेंटेंस, ग्रुप ऑफ वर्ड्स which have the combination of subject and verb and makes complete sense is called sentence. So the difference between phrase and clause: phrase cannot stand alone because there is no action, there is no verb, right? And in clause, they may or may not stand alone because sometime in a clause, group of words means there is subject and verb, but still sentence is not complete. For example, if I say that, for example, same sentence we can take. If I say that, so I and say, I is subject and say is verb, but still sentence is not complete. If I say that, so then there is question, what would happen? So if I say that I will be able to explain you, or another example I'm taking. If I say that when you come to me, example for clause, when you come to me, that is not complete. However, you is subject and come is verb, but still sentence is not making complete sense when you come to me. So another part of this sentence is I will explain you. So I will explain you making complete sense. So if you remove when you come to me, and separately if you read I will explain you, that is enough to know, that is sufficient to learn that I'll explain you, right? So this is the difference between clause and a phrase. Clause may or may not stand alone. When clause makes complete sense, that is sentence, but when clause may does not make complete sense, it's a dependent clause, right? So that is something about the phrase, clause, and sentence. Now come to today's agenda, that is what is phrase according to this text. So a phrase is a group of words, right, that functions as a single grammatical unit. So that is the group of words, and that acts as or works as single grammatical unit within a sentence. Please take care, that is within a sentence.
right? Within a sentence. Unlike a clause. Clause is what? A phrase does not contain, unlike clause, means just opposite to clause. A phrase does not contain subject and a subject and a verb that works together to form complete thought. तो फ्रेज की कंडीशन ही यही है कि उसमें इन द फ्रेज देयर इज़ नो कॉम्बिनेशन ऑफ सब्जेक्ट एंड वर्ब, होता ही नहीं है ना? सब्जेक्ट वर्ब नहीं होता फ्रेज में. थिंक अ फ्रेज एज अ बिल्डिंग ब्लॉक ऑफ सेंटेंस. फ्रेज एक सेंटेंस में को बनाने में हेल्प कर सकता है. इट एड्स डिटेल. तो एक फ्रेज जो है वो डिटेल बता सकता है, कंटेक्स्ट बता सकता है, एंड मीनिंग, और उसका मीनिंग किसी सेंटेंस में मीनिंग में हेल्प कर सकता है, बट कैन नॉट स्टैंड ऑन इट्स ओन. पर उसका सिंगल सेंटेंस की तरह कैन नॉट स्टैंड अलोन. तो ये फ्रेज़ है. हमने फ्रेज़ में क्या देखा कि फ्रेज़ में पूरी बात ये द ओवरऑल like in one line a few words, if we see that what is phrase. So just remember, phrase is a group of words which does not have a subject and verb combination. Just keep in mind, and that is why that cannot stand alone. Now for example, in the sentence the cat on the mat is sleeping. So this sentence can be divided into three pieces. The cat on the mat is sleeping. So here the cat, right, on the mat. So this on the mat is, this is on the mat, form a phrase. That is phrase. That is group of words can be used anywhere, but this group of words cannot make any sense, and that is why this is phrase. This phrase tells where the cat is. तो उसने क्या बताया कि cat कहाँ है? On the mat, but it does not express a complete idea by itself. लेकिन on the mat separately पढ़ोगे तो you will not get meaning. Why? Because it does not make complete sense. Now moving to next, types of phrases. So types of phrases में बहुत ज़रूरी है, if we want to learn IC analysis, immediate constituent analysis, which is based on phrase. So first we have to know what is phrase. It should be clearly known what is phrase. So let us understand phrase. Phrases are typically categorized based on the grammatical function. तो phrases उसके grammatical function के according अलग अलग होते हैं. They serve in a sentence which is often determined by head of the word. तो हर phrase में एक head of the word होगा, उसका main head होगा, है ना, head of the word. तो एक phrase में word phrase में एक word head word होगा, ऐसे समझो उसको. So let us see what are the varieties, what are the types of phrase. First is noun phrase. So before proceeding we should know that what is noun. So noun is the name, or noun is the naming word. Naming word means if we see the classroom, so that's a door, latch, right, window, blackboard, chalk, students, boys, girls, teacher, right? These all are the noun. Why? Because noun is the name of a person. You just remember any person, place, Indore, Dhar, Jabalpur, Bhopal, America.
So noun is the name. Noun is the name of the person, place, animal, cow, any animal, goat, right? Animal or thing, mobile, chalk, right? Pen, duster. These are the name of the things. And idea or name of feeling, right? So feeling is motherly, brotherly, sadness, happiness. These are all a noun. And noun is naming words, है ना? Noun is the naming words. But names are divided into 5 category. Name of common thing is called common noun. Name of proper or individual thing, my name, your name, right? Ganga river. So this is proper noun. And then name of feelings are abstract noun, which cannot be seen, cannot be touched, but can be felt only, are called abstract noun. For example, motherly, brotherly, childhood, right? Powerful, richness. These all are the example of abstract, है ना? So that is abstract noun. Then next category is mm, that is called that group of collective noun. Collective noun is flock of birds, right? So that's a birds का group is called flock of birds. Then जहाँ बहुत सारी ship आके इकट्ठी होती हैं, है ना? तो दैट्स अ फ्लीट ऑफ शिप्स. बहुत सारी इकट्ठी शिप्स कहीं है तो आप उसको कहोगे फ्लीट ऑफ शिप्स, है ना? तो इस तरह से ग्रुप, जैसे आर्मी का जैसे सोल्जर्स के ग्रुप इज़ आर्मी, है ना? तो ग्रुप ऑफ सोल्जर्स आर कॉल्ड आर्मी. तो ऐसा दैट इज़ कलेक्टिव नाउन. और एक और है मटेरियल नाउन. नेम ऑफ मटेरियल, किसी भी में ग्लास, राइट? कांच का मटेरियल होता है ना, ग्लास, देन मेटल. सो दीज आर द मटेरियल नाउन. तो ये आपको समझना है फ्रेजेस के पहले. तो ये सारे अभी हमने जो भी नाउन देखे, नाउन्स आर सिंगल वर्ड, हेड वर्ड कह सकते हैं हम, और सिंगल वर्ड. बट कभी कभी नाउन में बहुत सारे वर्ड्स और भी होते हैं उसके आसपास, लेकिन वो काम नाउन का ही करते हैं. मतलब नाउन और नाउन फ्रेज में अंतर समझना पड़ेगा. वी हैव टू अंडरस्टैंड नाउन एंड नाउन फ्रेज. सो नाउन इज़ अ सिंगल वर्ड, बट इन नाउन फ्रेज मीन्स एटलीस्ट 2 वर्ड्स और मोर देन 2 वर्ड्स. फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे देखते हैं, पहले डेफिनेशन देखेंगे हम, राइट? देखो, अ ग्रुप ऑफ वर्ड्स दैट फंक्शंस एज अ नाउन, है ना? कितने भी सारे ग्रुप वर्ड्स होंगे उसमें, लेकिन अगर वो नाउन की तरह, नेमिंग वर्ड की तरह काम कर रहा है, तो विल बी नोन एज नाउन फ्रेज, है ना? द हेड ऑफ द नाउन फ्रेज इज ऑफ कोर्स नाउन और प्रोनाउन. ये याद रखना, द हेड ऑफ द नाउन फ्रेज इज नाउन और प्रोनाउन, है ना? या तो नाउन या प्रोनाउन. ओके, नाउ फंक्शन क्या है? नाउन कैन एक्ट एज द सब्जेक्ट ऑफ सेंटेंस, अ डायरेक्ट और इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट, और अ कॉम्प्लीमेंट. 3 तरह से नाउन आपको, 3 जैसे सब्जेक्ट, वर्ब और ऑब्जेक्ट, ये एक सेंटेंस का स्ट्रक्चर होता है. तो नाउन कहाँ कहाँ हो सकता है? इट कैन बी सब्जेक्ट ऑफ द सेंटेंस, तो या तो वो सब्जेक्ट होगा, है ना? और डायरेक्ट और इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट होगा. तो डायरेक्ट और इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट क्या होता है? वो ये होता है, ये ऑब्जेक्ट यहाँ भी हो सकता है, ये ऑब्जेक्ट यहाँ भी हो सकता है ना? ऑब्जेक्ट ये डायरेक्ट सॉरी, ये ऑब्जेक्ट ये डायरेक्ट ऑब्जेक्ट है और ये इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट है. तो ऐसे भी हो सकता है. ये भी क्या है? ये भी नाउन है. यहाँ पे होगा या यहाँ पे होगा. या फिर नाउन एक कॉम्प्लीमेंट की तरह हो सकता है. कैसे? यहाँ पे सब्जेक्ट वर्ब और इधर ऑब्जेक्ट, सॉरी, सब्जेक्ट वर्ब और इधर कॉम्प्लीमेंट,
की तरह होता है, भी हम सेंटेंस में देखेंगे। तो ये आपके माइंड में ये फिक्स होना चाहिए कि नाउन की पोजीशन कहीं भी हो सकती है सेंटेंस में। एग्जाम्पल इज द ओल्ड रस्टी कार। अब इसमें कार को, है ना, ब्रोक डाउन तो क्या है, ये तो एक वर्ब है। अभी थोड़ी देर के लिए ये वर्बल फ्रेज है, पर आप इसको भी वर्ब समझिए, है ना। लेकिन यहाँ पे ये जो डस्टी कार है, ये कार क्या है, नाउन है। तो उसके पहले जो ओल्ड रस्ट है ना, ये क्या है, ये नाउन फ्रेज है। और डिटेल में हम बाद में देखेंगे। फिर हम आते हैं, लेट कम टू वर्ब फ्रेज डेफिनेशन। अ ग्रुप ऑफ वर्ड्स। अब वर्ब फ्रेज मतलब आप तुरंत वर्ब मतलब एक्शन वाले में आ जाओ। अ ग्रुप ऑफ वर्ड्स दैट फंक्शंस एज अ मेन वर्ब। बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है ये, तो जस्ट लिसन केयरफुली। अ ग्रुप ऑफ वर्ड्स, क्योंकि फ्रेज की बात कर रहे हैं, दैट फंक्शंस एज अ मेन वर्ब ऑफ अ सेंटेंस, जो किसी सेंटेंस में मेन वर्ब की तरह काम करता है, मतलब एक्शन की का काम करता है। इंक्लूड्स द मेन वर्ब एंड एनी ऑक्सिलरी और हेल्पिंग वर्ब। मेन वर्ब तो होगा ही उसमें, और हेल्पिंग वर्ब भी होगा, है ना। तो मेन वर्ब, एटलीस्ट एक मेन वर्ब, और कितने भी हेल्पिंग वर्ब्स हो सकते हैं, सो वो फ्रेज कहते हैं। फंक्शन क्या है, एक्सप्रेसेस द एक्शन और स्टेट ऑफ बीइंग इन अ सेंटेंस। मतलब मेन वर्ब, जो वर्ब फ्रेज है वो क्या करता है, एक्शन तो मैंने बताया, और स्टेट ऑफ बीइंग इन अ सेंटेंस, या तो उसमें एक सेंटेंस में उसकी स्टेटस बताता है। कैसे, एग्जाम्पल, शी हैज़ बीन स्टडिंग ऑल डे। शी तो क्या हो गया, शी तो सब्जेक्ट है, लेकिन हैज़ बीन स्टडिंग ये वर्ब फ्रेज है। द मेन वर्ब इज स्टडिंग, ये तो हमें भी पता है, मेन वर्ब क्या है, स्टडिंग, एंड द हेल्पिंग वर्ब्स आर हैज़ बीन। तो हैज़ बीन स्टडिंग ये वर्ब फ्रेज है, ऐसे याद रखो। चलिए मूविंग टू नेक्स्ट। तो ये आपको समझ में आया होगा। फिर एडजेक्टिव फ्रेज। एडजेक्टिव फ्रेज क्या है, वो एक डेफिनेशन इज ग्रुप ऑफ वर्ड्स दैट फंक्शंस एज एन एडजेक्टिव। एडजेक्टिव फ्रेज एडजेक्टिव की तरह काम, हेड वर्ड इसमें ऑफ कोर्स क्या होगा, एडजेक्टिव होगा। अब फंक्शन क्या है, एडजेक्टिव मॉडिफाइज नाउन टू प्रोनाउन। एडजेक्टिव हमेशा नाउन या प्रोनाउन को मॉडिफाई करता है, प्रोवाइडिंग मोर डिस्क्रिप्टिव इंफॉर्मेशन कि वो नाउन और प्रोनाउन कैसा है। फॉर एग्जाम्पल, द मूवी वॉज इनक्रेडिबली एक्साइटिंग, है ना। अब ये जो मूवी के बीच में ये वॉज लगा है ना, ये सेंटेंस 3 पार्ट्स में डिवाइड हो सकता है। और वो कौन कौन से पार्ट्स हैं, वो है द मूवी वॉज इंक्रीजिंग, है ना। अब इसमें आप देखो, द मूवी क्या है, द मूवी फर्स्ट पार्ट, वॉज सेकेंड पार्ट, और इनक्रेडिबली एक्साइटिंग ये थर्ड पार्ट है ना। तो इसमें द मूवी के लिए क्या यूज़ हो रहा है, मूवी के लिए ये इनक्रेडिबली एक्साइटिंग मूवी के लिए यूज़ हो रहा है, मतलब नाउन के लिए यूज़ हो रहा है ये ग्रुप ऑफ वर्ड्स। इसीलिए इनक्रेडिबली एक्साइटिंग ये क्या हो गया, ये दैट इज़ कॉल्ड एडजेक्टिव फ्रेज, है ना। एडजेक्टिव फ्रेज है इनक्रेडिबली एक्साइटिंग, सो मॉडिफाइज द नाउन मूवी, है ना, ऐसा। चलिए नेक्स्ट, एडवर्ब फ्रेज। एडवर्ब फ्रेज क्या है, ग्रुप ऑफ वर्ड्स दैट फंक्शंस एज एन एडवर्ब। ये तो हमें भी क्लियर है कि जो एडवर्ब की तरह काम करेगा, और हेडवर्ड क्या होगा इसमें, एडवर्ब होगा। फंक्शन, फंक्शन क्या है, एडवर्ब मॉडिफाइज अ वर्ब। ये याद रखना, बहुत इंपॉर्टेंट। एडवर्ब वर्ब को तो मॉडिफाई करता है, एडजेक्टिव को भी करता है,
और अनदर एडवर्ब को भी करता है। एंड ऑफन टेल्स, और एडवर्ब कैसे पहचानोगे? इट टेल्स अबाउट, कि वो जो काम है वो, है ना, तो इट टेल्स अबाउट हाउ, राइट। तो एडवर्ब क्या करता है कि कैसे, हाउ, राइट। चलो, इट डज नॉट वर्क। हाउ, है ना, देन, ओके, व्हेन, वेयर, एंड wait a minute, actually this phone is hang, little bit hang. Now I'm telling you. So that adverb tells about, often about how, when, where और why। इन सब का जवाब जब सेंटेंस में मिले तो वो एडवर्ब होगा, कि कोई काम कैसे हुआ है ना, कब हुआ है। तो इसको मैं और क्लैरिटी से बताती हूँ आपको कैसे। हाउ, तो हाउ मतलब किस तरीके से, मैनर, राइट। फिर व्हेन, राइट, तो व्हेन मतलब टाइम। फिर वेयर, तो प्लेस, है ना, और वाई, तो रीज़न। तो जब आपको ये सारी चीज़ें के आंसर मिले किसी सेंटेंस में, तो वो क्या है? वर्ब है, एडवर्ब है, सॉरी। ही रेन, है ना, ये सेंटेंस में ही रेन, तो ये जो रेन है इसको कैसे दौड़ रहा है, वो हाउ का आंसर दे रहा है, वो वेरी क्विकली। तो ये क्या हो गया? एडवर्ब हो गया। तो याद रखिए, हाउ, व्हेन, वेयर, व्हाई, इसको बहुत अच्छे से याद करना है आपको। हाउ, देखो कैसे, हाउ, व्हेन, वेयर, व्हाई। हाउ, मैनर, व्हेन, टाइम, वेयर, प्लेस, और व्हाई, रीज़न। ऐसे याद रखो इसको। तो दीज आर द एग्जाम्पल्स ऑफ एडवर्ब, है ना। फिर नेक्स्ट लास्ट है इस कैटेगरी का प्रिपोजिशनल फ्रेज। तो इसमें नेचुरली इसका ग्रुप ऑफ वर्ड दैट बिगिंस विद प्रिपोजिशन, याद रखो, दैट बिगिंस विद प्रिपोजिशन, बहुत अच्छे से याद करना, बिगिंस विद प्रिपोजिशन, है ना। तो वो सेंटेंस बिगिंस विद अ प्रिपोजिशन एंड एंड्स विद अ नाउन और प्रोनाउन। जो प्रिपोजिशन से शुरू होगा और नाउन या प्रोनाउन से एंड होगा, उस फ्रेज को कहते हैं प्रिपोजिशनल फ्रेज। द ऑब्जेक्ट ऑफ प्रिपोजिशन, है ना, द ऑब्जेक्ट ऑफ प्रिपोजिशन। ऑब्जेक्ट क्या? कि ग्रुप ऑफ वर्ड्स दैट बिगिंस विद अ प्रिपोजिशन एंड एंड्स विद अ नाउन और प्रोनाउन। मतलब हमें अभी बीच में कहाँ पर वो ग्रुप ऑफ वर्ड्स कहीं भी हो सकता है, पर वो स्टार्ट किससे होगा? प्रिपोजिशन से स्टार्ट होगा और एंड नाउन या प्रोनाउन से। आपको पता होगा एडजेक्ट प्रिपोजिशन की डेफिनेशन है वर्ड ग्रुप, अ वर्ड विच इंडिकेट्स द पोजीशन। तो पोजीशन किसकी? विच इंडिकेट्स द पोजीशन ऑफ नाउन और प्रोनाउन, है ना। तो इसीलिए ये नाउन या प्रोनाउन की पोजीशन बताता है। फंक्शन क्या है? प्रिपोजिशन कैन फंक्शन एज इन एडजेक्टिव और एडवर्ब, है ना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। प्रिपोजिशन किसकी तरह से काम कर सकता है? एडजेक्टिव की तरह और एडवर्ब, और एडिंग डिटेल अबाउट टाइम, लोकेशन, डायरेक्शन, रीजंस। तो इसमें आपको थोड़ा सा ध्यान से पढ़ना। अभी हमने देखा कि प्रिपोजिशन क्या है। तो प्रिपोजिशन एडजेक्टिव की तरह काम करेगा या एडवर्ब की तरह, एंड क्या बताएगा? टाइम बताएगा, लोकेशन बताएगा, डायरेक्शन बताएगा और रीज़न। देखो इसको कैसे समझते हैं। द बुक इज़ ऑन द टेबल। ऑन में
ऑन प्रीपोजिशन है, तो ये प्रीपोजिशन ऑन द टेबल प्रीपोजिशनल फ्रेज है। और एक्स एज एन एडवर्ब है ना, यहाँ वो एडवर्ब का क्यों काम कर रहा है, क्योंकि वो बता रहा है, अभी हमने देखा था एडवर्ब में कि वो प्लेस भी बताता है। तो ये ऑन द टेबल है तो प्रीपोजिशनल फ्रेज, बट दिस group of words works as an adverb. Why adverb? Because that talks about the time, place, that talks about the place, that the book is, what the place of book, on the table, telling us where book is, right? So where the book is, that is adverb, works as adverb but then prepositional phrase. So these are the varieties we have seen. Noun phrase, है ना, noun phrase, then verb phrase, noun phrase, verb phrase, then adjective phrase, adverb phrase and prepositional phrase must be very clear to you. So please repeat and revise again and again, which are very important. Now other common type of phrases. तो टाइप ऑफ फ्रेजेस जो अभी हमने कैटेगरी देखी, तो अकॉर्डिंग टू दिस कैटेगरी मीन्स इसमें हेड वर्ड्स क्या है, तो नाउन फ्रेज, देन वर्ब फ्रेज, एडजेक्टिव फ्रेज, एडवर्ब फ्रेज एंड प्रीपोजिशनल फ्रेज। हमने पार्ट्स ऑफ स्पीच जब पढ़ा था तो हमने देखा था उसमें 8 पार्ट्स ऑफ नाउन, प्रोनाउन तो एक ही बात हो गई, फिर वर्ब है ना, फिर एडवर्ब, इसको एक साथ याद करो, और फिर एडजेक्टिव और प्रीपोजिशन है ना। तो कैसे याद कर सकते हैं इसको ऐसे याद रखो, 1 नाउन, 2 वर्ब है ना, 3 एडजेक्टिव है ना, 4th प्रीपोजिशन। अब एक और कौन सा बचा है, नाउन है ना, फिर वर्ब, ठीक है, एडजेक्टिव और प्रीपोजिशन। ऐसे 5 चीज़ें आपको बिल्कुल अच्छे से याद रखना है। नाउन मैं आपको ऑर्डर बता रही हूँ, आप उसी ऑर्डर में याद करना। नाउन, वर्ब, एडवर्ब, एडजेक्टिव, प्रीपोजिशन, इस तरह से याद करो। दूसरे तरीके से अगर हम फ्रेजेस के टाइप्स देखें तो क्या है, इन एडिशन टू द मेन 5 देयर आर अदर टाइप्स ऑफ फ्रेजेस दैट आर इम्पॉर्टेंट टू नो, क्योंकि वो भी आईसी एनालिसिस में काम आने वाले हैं। पहला है जीरंड फ्रेज। जीरंड समझते हो, जीरंड का मतलब होता है मेन वर्ब प्लस आईएनजी फॉर्म। लेकिन जैसे आपने कहा रीडिंग है ना, रीडिंग, पर इस रीडिंग के पहले यहाँ पर कोई हेल्पिंग वर्ब नहीं होना चाहिए। तो ये क्या है, जीरंड है। कैसे, रीडिंग इज़ माई हैबिट और आई लाइक रीडिंग। तो आपने दोनों केस में रीडिंग इज़ माई हैबिट और आई लाइक रीडिंग दोनों में आईएनजी फॉर्म के पहले इज़, एम, आर, वॉज, वर नहीं देखा है ना। अगर वो इज़, एम और, जैसे ये मैंने बोला रीडिंग इज़ माई हैबिट, तो आपने यहाँ नोट किया होगा कि यहाँ पर हेल्पिंग वर्ब नहीं है ना। या दूसरा एग्जाम्पल हम देखते हैं, आई लाइक रीडिंग। तो यहाँ पर भी आपने देखा होगा कि इसके पहले है ना, यहाँ पे इसके पहले रीडिंग के पहले यहाँ पे हेल्पिंग वर्ब नहीं है। तो इसीलिए ये क्या है, ये रीडिंग जो है ये भी जीरंड है। तो जीरंड में और कंटिन्यूस टेंस में डिफरेंस ये है कि जीरंड मतलब आईएनजी फॉर्म के पहले इज़, एम, आर, वॉज, वर नहीं लगा रहेगा, जबकि कंटिन्यूस में इफ़ आई एम टीचिंग यू, तो एम जो है वो हेल्पिंग वर्ब है ना। शी इज़ टीचिंग यू, तो टीचिंग के पहले इज़ लगा है, इसलिए वो कंटिन्यूस टेंस है।
पर मैंने बोला टीचिंग इज़ हर पैशन, तो उसमें नहीं लगा। या आई लाइक टीचिंग, तो वहाँ पर भी हेल्पिंग वर्ब टीचिंग के पहले नहीं है, इसलिए वो जीरेंडियल फॉर्म है। चलिए खैर देखते हैं जीरेंडियल फॉर्म। अ फ्रेज दैट बिगिंस विद अ जीरंड, है ना, कोई भी फ्रेज जो जीरंड से शुरू होता है, मतलब आईएनजी फॉर्म, आपके माइंड में ये फिक्स हो जाना चाहिए, एन आईएनजी वर्ब फॉर्म, एन आईएनजी वर्ब फॉर्म दैट एक्ट्स एज अ नाउन, है ना, तो वो किसकी तरह, नाउन की तरह काम करे। यहाँ नाउन की तरह क्या, नाउन की फर्स्ट प्लेस है या सब्जेक्ट की, तो रीडिंग इज़ माई हैबिट, माई हैबिट, है ना, तो यहाँ पर ये जो फर्स्ट वर्ड है ये नाउन की तरह काम कर रहा है, ठीक है। तो इसीलिए इसको देखते हैं कैसे। रनिंग अ मैराथन इज़ माई गोल, रनिंग अ मैराथन इज़ माई गोल, ये रनिंग जो है जीरंडियल है। अब फ्रेज कैसे हो गया ये, कि यहाँ पे आपको दूसरे तरह का जो है रनिंग अ मैराथन, है ना, इज़ माई गोल, तो यहाँ पर यह अभी तक रनिंग की ही बात कर रहा है कि मैराथन में दौड़ना, ये पूरा क्या है, जीरंडियल फ्रेज है ना, कि बस रनिंग अ मैराथन, मैराथन में दौड़ना मुझे अच्छा लगता है, ठीक है, तो मेरा गोल है, ठीक है, तो इस तरह से इसको जीरेंडियल फ्रेज कहते हैं। नंबर 2, इन्फिनेटिव फ्रेज। जैसे आपने जीरेंडियल में क्या देखा, मेन वर्ब प्लस आईएनजी, है ना, और इसी का दूसरा फॉर्म होता है टू प्लस मेन वर्ब, इसको हम इन्फिनेटिव कहते हैं। कैसे, जैसे रीडिंग और टू रीड, टू रीड, ये डिफरेंस है ना, बहुत अच्छे से डिफरेंस को समझो कि ये जो है कौन सा, ये रीडिंग, ये मेन वर्ब है जो जीरंडियल है, और टू रीड ये क्या है, ये इन्फिनेटिव है, इसको याद रखना अच्छे से। चलिए, अ फ्रेज दैट बिगिंस विद एन इन्फिनेटिव means 2 plus verb form and can function as a noun, adjective और adverb। बहुत important, किसकी तरह काम कर सकता है वो, नाउन की तरह या एडजेक्टिव या एडवर्ब की तरह। नाउन आपके माइंड में फिक्स होना चाहिए, नाउन इमेजिन करो, एडजेक्टिव मतलब नाउन के बारे में कुछ कह रहा है या प्रोनाउन के बारे में, और एडवर्ब मतलब वर्ब के बारे में। लेकिन वो फॉर्म कौन सा है, इन्फिनेटिव, मतलब टू के साथ मेन वर्ब है। कैसे, शी वॉन्ट्स टू लर्न, है ना, टू प्ले गिटार। इस सेंटेंस को कैन बी डिवाइडेड इनटू 3 पार्ट्स। शी वॉन्ट्स, तो वॉन्ट्स पे फोकस आ गया हमारा, तो टू लर्न, है ना, शी वॉन्ट्स टू लर्न, राइट, टू लर्न टू प्ले गिटार। अब इसमें टू लर्न एंड टू प्ले गिटार, है ना, तो टू लर्न क्या है, ये वर्ब है, वॉन्ट्स के लिए यूज हो रहा है, इसलिए ये एडवर्ब हो गया। टू प्ले गिटार, है ना, तो टू प्ले गिटार, यहाँ पर एक बात समझना अच्छे से कि ये नाउन क्या है, टू प्ले गिटार, ये नाउन, ठीक है, तो टू लर्न वर्ब है और टू प्ले गिटार दैट इज नाउन फ्रेज है, ठीक है। इसको और डिटेल में बात बताऊंगी आपको। चलिए, फिर है पार्टिसिपल फ्रेज भी होता है, फ्रेज दैट बिगिंस विद अ पार्टिसिपल। अब पार्टिसिपल बहुत इंपॉर्टेंट है, वर्ब फॉर्म एंडिंग इन आईएनजी और ईडी, याद रखना। पार्टिसिपल का मतलब होता है ऐसा वर्ब जो आईएनजी से या ईडी से ख़त्म होता है। फ्राइंग, फ्राई करना वर्ब है और आईएनजी लगा दिया तो फ्राइंग बन गया, फ्राइंग पैन, है ना, तो ये क्या है, इसको पार्टिसिपल कहते हैं, याद रखना। या
एडवांस एकेडमी, तो एडवांस्ड ईडी है ना, तो ये भी एग्जाम्पल इज पार्टिसिपल है ना। जैसे कहते हैं लर्निड पर्सन, ईडी, लर्निड ईडी लगा है तो वो पर्सन के पहले लगा है, लेकिन लर्निड क्या है, पार्टिसिपल फॉर्म है। लर्निंग एटीट्यूड, आईएनजी फॉर्म भी पार्टिसिपल फॉर्म है। ये एग्जाम्पल्स हैं। तो दैट एक्ट्स एज एन एडजेक्टिव। और पार्टिसिपल जो होते हैं वो किसकी तरह काम करते हैं, वो एडजेक्टिव की तरह काम करते हैं। मतलब एडजेक्टिव के दो फॉर्म होते हैं, या तो आईएनजी या तो ईडी है ना। वो किसके साथ लगे रहते हैं, वर्ब के साथ, मेन वर्ब के साथ। एग्जाम्पल है इसका, एग्जाम्पल है चीटिंग, चीटिंग, और इसका एग्जाम्पल है चीटेड, चीटेड। ये कौन से फॉर्म है ना, तो दैट्स अ चीटिंग, राइट। सो इट्स चीटिंग विद मी, राइट, ऐसा। ओके, तो चलिए देखते हैं एग्जाम्पल। स्माइलिंग ब्राइटली। अब स्माइलिंग क्या है, आईएनजी फॉर्म है, तो स्माइलिंग ब्राइटली शी ग्रीटेड हर फ्रेंड्स। तो ये क्या हो गया, ये कौन सा फॉर्म हो गया, पार्टिसिपल। क्यों फ्रेज है, क्योंकि स्माइलिंग ब्राइटली है ना, ये काम किसकी तरह कर रहा है, उसने बोला एडजेक्टिव, राइट। कैसे, तो ये वर्क कैसे करेगा, एडजेक्टिव। स्माइलिंग ब्राइटली, तो ये किसके लिए यूज़ हो रहा है, शी के लिए। शी ग्रीटेड हर फ्रेंड्स, मतलब आप उसके फेस में स्माइल देख रहे हैं, यानी नाउन के बारे में बता रहा है। तो याद रखिए कि जो पार्टिसिपल फ्रेज है वो नाउन के बारे में बताता है। और लास्ट है अपोजिटिव फ्रेज, जिसको नाउन फ्रेज का अपोजिटिव फ्रेज, दैट रीनेम्स और एक्सप्लेन्स अनदर नाउन है ना, नेक्स्ट टू इट। कहाँ पे, माई ब्रदर अ टैलेंटेड म्यूजिशियन, ब्रदर के लिए ही बोल रहा है वो कि जो टैलेंटेड म्यूजिशियन है। ये फ्रेज जो है दैट इज़ अपोजिटिव फ्रेज, इसको कहते हैं अपोजिटिव फ्रेज। तो अभी तक हमने दूसरी कैटेगरी सिर्फ नॉलेज के लिए पढ़ा, जीरेंड फ्रेज जिसमें आईएनजी है ना। जीरेंड मतलब आप मेन वर्ब प्लस आईएनजी याद रखो, ठीक है। सिंगिंग है ना, फिर दूसरा है इन्फिनेटिव टू सिंग, राइट, दे वॉन्ट टू सिंग, तो वो इन्फिनेटिव हो गया। पार्टिसिपल आईएनजी फॉर्म और ईडी फॉर्म इन मेन वर्ब, जो एडजेक्टिव की तरह काम करता है, विच फंक्शंस एज एन एडजेक्टिव। और अपोजिटिव जो एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन देता है, जैसे कि मैं मदर आ गुड हाउस वाइफ, राइट, तो ये कुक्स वेरी गुड पुलाव है ना। तो अ मदर अ हाउस वाइफ, तो मदर के लिए अ हाउस वाइफ अपोजिशन फ्रेज है, क्योंकि वो एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन दे रहा है, मेक्स अ गुड पुलाव, ऐसा, इस तरह का। समझ में आया, तो दैट इज समथिंग इंट्रोडक्शन ऑफ द फ्रेजेस। Thank you so much. If you have any question, any doubt, you can ask me. Thank you so much. God bless you.